Ladies and gentlemen, we have had a series of interesting and engaging panel discussions. It's now time to move forward to an engaging fireside chat. This is about a show that has been doing immensely well in almost every genre, especially in kids genre. This is a show that has been running successfully for the longest time, and it still continues to gain momentum every now and then. Ladies and gentlemen, this is going to be an interesting fireside chat on the topic Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, betting big in kids genre. I'll repeat the topic once again for the fireside chat. This is about Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, betting big in kids genre. We have somebody very special joining us over here. This is going to be a session moderated by Mr. Siddharth Laik, founder and editor-in-chief, IWM Buzz Media Network, and he's going to be joined on stage by, ladies and gentlemen, the one and only, the man, the visionary, Asit Kumar Modi, founder, Neela Film Productions and Neela Media. Take a huge round of applause for Asit sir as he joins us on stage over here, please. Thank you, Asit sir, for coming over here. हमारे साथ रहने के लिए, thank you. And give a big round of applause to Mr. Siddharth Laik as well, once again, please. Doing almost everything, curating the event, putting the event together, doing fireside chats, everything. Thank you so much. Before we begin, can we just play the AV, please? Yeah. Sound, please. तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्ले स्कूल. Tarak Mehta Ka Ulta Chashma Play School is a gamified educational app designed to make learning truly fun. With over 1,000 interactive lessons, progress reports for parents, and support for multiple languages, it's built on a structured curriculum to help every child thrive. Coming soon on Android and iOS devices for as low as rupees 599. Thank you. It's done. Thank you so much. So we'll talk more about it. Ajay, sir. This is your mic? It's on, right? Yeah. Thank you everyone for being a very patient audience this morning. I think the day has progressed really well. And India Kids Summit is in its 6th season. Asit sir से मैं शायद second या तीसरी बार बात कर रहा हूँ. Before we get into the business side of things, I want to thank you, Asit ji, for being so gracious, so supportive. Whenever we want to do something innovative, something interesting, one phone call to you, and you say, yes, let's do it together. And immense congratulations for creating an IP or a show or a revolution in content called Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. I mean, it's phenomenal how it has stood the test of time. It's pan-India, pan-global. Any part of India you go, people are watching your show. And I've been to your office and I've seen how passionately every day you work on the script sessions. Sir, please बताइए तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी भी इतना सक्सेसफुल कैसे है? अभी भी यानी this is now we are in 17th year, and the only motivation is we are bringing happiness to our audience, and audience को भी बहुत खुशी मिलती है, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन है और उसके लिए रोज़ मेहनत करते हैं. अच्छा टीम वर्क है, तो बस शो चलते जा रहा है. लोग हंसते हैं तो हम हंसाते हैं, हम हंसते हैं तो लोग हंसते हैं. तो that is comedy is at the core, और कॉमेडी आसान नहीं है सर. जब हमारी बात होती है, कॉमेडी इज नॉट इजी. हाँ, रोज स्टोरी चाहिए. एवरी डे शो है, 6 days a week. एवरी डे 8:30 को हमारा ऑडियंस को एक उम्मीद होता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ऐसा क्या होगा. तो आज भी वो ऑडियंस 2008 में जब हमने शो चालू किया था तब से लेके अभी तक है. तो वही एक हम लोग स्टोरी पे बहुत वर्क करते हैं, कैरेक्टर्स के रिलेटेड स्टोरी बनाते हैं, और हमारा जो शो का जो मेन कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेट है, जो कैरेक्टर है, उससे हम लोग डिविएट नहीं होते. और बहुत सारा चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. डे टू डे लाइफ लोगों का चेंज हो रहा है. लाइक 2008 में सोशल मीडिया वॉज नॉट देयर, OTT नहीं था, एक अलग दुनिया थी. आज कुछ भी करो तो ऑर्डर किया, हाथ में आ गया. कहीं जाना है तो टैक्सी और रिक्शा आ गई.
आज कुछ भी देखना है तो वीडियो ऑनलाइन हो जाता है, यूट्यूब, ये सब बहुत लिमिटेड था। तो उससे लेके अभी तक हम लोग वो भी कांस्टेंट वो ध्यान में रखते हैं कि ऑडियंस का टेस्ट क्या चेंज हो रहा है, ऑडियंस को क्या चाहिए। तो एक रिसर्च टीम है, सब लोग साथ में मिलके सोचते हैं, और शो आज भी लोगों ने इतना प्यार दिया है, चैनल का भी अच्छा सपोर्ट है, तो बस शो चलता है। ब्रांड्स भी बहुत प्यार से हमारे शो पर आते हैं कि भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा का टाइम स्पेंड अच्छा है, और ये शो कहीं ना कहीं लोगों की हैबिट बनी हुई है, लोगों के दिल में है। सर आई थिंक इट्स फिनोमिनल। मैं आपके जो नया किड्स वेंचर है उसके बारे में बात करूंगा, बट बिफोर दैट आई हैव टू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बिकॉज घुसते आपने बोला पूछो जो पूछना है। दो सवाल है। एक, यू मेंशन्ड अबाउट ब्रांड्स इन्वेस्टिंग इन योर आईपी, एंड आई नो लॉट ऑफ ब्रांड्स हैव वर्कड विथ यू, पर कभी लगता है कि चलो ब्रांड्स को उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपका कहीं क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बिकॉज तारक इज़ अ ह्यूज ब्रांड। सो एट द कोर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है, जो कॉमन मैन, एंटरटेनिंग स्टोरीज विद सम सोशल मैसेज, वो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ब्रांड के साथ ऐसा कुछ स्टोरी बने कि ब्रांड को भी अच्छा लगे और हमारा शो के ऑडियंस को भी अच्छा लगे, साथ में कुछ मैसेज है, क्योंकि हम कल्चर को लेके चलते हैं, एक इंडियन कल्चर, एक कैसा फैमिली होना चाहिए। तो एक बहुत थॉटफुल शो है, ऐसा नहीं कि होते होते हो गया। हमने जब सोच के बनाया था तभी भी सोचा था कि एक एंटरटेनमेंट के साथ कुछ सोशल मोरल एथिक्स, सोशल वैल्यूज, ये सब भी होना चाहिए, तो उसको तो मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। Content is first. या But sir, iconic characters like Jethalal, Across. Now you're talking about content which is very Indian, rooted to an Indian tradition. तो मैं सर थोड़ा controversial question पूछना चाहूँगा, अगर आप जवाब देना। I know Satnam is looking at me from there. But एक अलग तरह की कॉमेडी भी इंडिया में हो रही है, आप देख रहे हो सोशल मीडिया में, व्हेन स्टैंड अप कॉमेडियंस कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस केसेस हो रही है। बट आई डोंट थिंक इन इंडिया एनीवन अंडरस्टैंड्स कॉमेडी मोर देन यू व्हेन इट कम्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द एंड यूजर्स। तो आपको उस तरीके की कॉमेडी के बारे में क्या बोलना है? इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डू इन तारक। देखिए, कॉमेडी बहुत डेलिकेट है, कभी कभी जबान फिसल जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी कॉमेडी के लिए जो एक डबल मीनिंग कॉमेडी या थोड़ा एडल्ट कॉमेडी, वो भी एक जरिया होता है। लेकिन ठीक है, मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सब लोग का हंसना सबको पसंद होता है। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हम लोगों को हंसाने जा रहे हैं, हमको लोगों को हैप्पीनेस देना है, हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है या किसी रिलीजियन को या किसी को ठेस पहुँचे। और कभी ऐसा अगर हुआ है तो हमने माफ़ी मांगने में भी हमको शर्म नहीं आता है। ऐसा कुछ हो गया है, ये कुछ लोगों ने अलग मीनिंग लिया, बहुत साल पहले के एपिसोड थे, तो होता है। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कुछ कि जो बहुत, क्योंकि हम लोग ध्यान में रखते हैं कि पूरा फैमिली साथ में बैठ के देख रहा है। और हमारा देश में इतने सारे रिलीजन हैं, और शो लोग मिनी हिंदुस्तान बोलते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के रहते हैं। तो हम लोग को सोच के करते हैं कि हम लोग एक इंडियन फैमिली के लिए बना रहे हैं, एक ऐसा फैमिली जो बॉम्बे में भी रहता है, कुछ फैमिली एकदम कोई यूपी बिहार के गांव में भी रहता है, वो सबको अपील होना चाहिए। और बहुत सोचते हैं कुछ भी करते वक्त कि फैमिली शो, फैमिली कॉमेडी छोटे बच्चे से लेके ग्रैंडफादर, फ्रेंड्स, मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ बैठ के एंजॉय करें। तो ये हमारी सोच है। बाकी लोगों को, कुछ लोगों को एडल्ट कॉमेडी पसंद है तो उसमें भी लोगों को हंसी आता है, कुछ लोग को सटायर कॉमेडी पसंद है। अभी सटायर होते होते कभी कभी कुछ हो जाता है, तो अभी वो बहुत सब्जेक्टिव है। मैं अपने को क्या करना है ना वो ध्यान रखता हूँ, और क्या नहीं करना चाहिए वो ध्यान रखता हूँ। उससे हमको पता चल जाता है शायद क्या नहीं करना चाहिए भी। हाँ, ये भी सीखने को मिलता है ना।
You have to be careful because you have a huge audience. Yeah. और तारक मेहता is a mass Yeah. show. मिनी हिंदुस्तान जो आप बोलते हो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इनको बारे में स्टेज पे बोल चुके हैं. So when it comes to your television show, its viewership on digital of the show is phenomenal. अभी मुझे ये बताइए सर, आपने उनका कैरेक्टर्स बनाए, एनिमेशन कैरेक्टर्स बनाए, अभी आपके और प्लान्स भी है. तो आपने मास एक सर्टन एज को तो कैप्चर कर लिया है, अभी किड्स जॉनरा को तारक के थ्रू एक्सपेंशन की क्या प्लान है सर? See, in India, no one has created a universe of particular show or film. अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया है. तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पहले भी बहुत सारे सक्सेसफुल शो थे. तो लेकिन कभी हमने इंडिया में कोई शो को हमने उस तरह से ब्रांड एज अ मार्केट नहीं किया है. शो बंद हो जाता है, हम लोग भूल जाते हैं. लेकिन हमारी ये कोशिश है, जब इतना प्यार मिला है ऑडियंस का, रोज इतने करोड़ों में लोग हमारा शो देख रहे हैं, तो उसी ने मुझे इंस्पायर किया कि हम लोग एक यूनिवर्स बनाते हैं. ये कैरेक्टर के साथ एक एनिमेशन शो भी होना चाहिए, जो बहुत सक्सेसफुली एब्रॉड में हुआ है, जो डिज्नी ने किया है. आज कोई भी अलादीन अगर फिल्म है तो उसका प्ले भी दे सकते हो, वहाँ ओपेरा में भी जा सकते हो, उसकी गेम्स भी बनती है, पार्क में जाते हैं तो लाइसेंस एंड मर्चेंडाइजिंग भी होता है, उसका म्यूजिक भी स्पेशल होता है, हर चीज एक यूनिवर्स हो जाता है. तो ऐसा हमारा इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन हमने कभी कोई शो का अपना यूनिवर्स नहीं बनाया. तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कश्मीर से कन्याकुमारी से लेके गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक सब जगह पे कहीं ना कहीं लोगों को मालूम है. या तो लोगों ने शो को देखा है, नहीं देखा है तो शो का नाम तो मालूम है कि शो कैसा है. Absolutely, yeah. तो हमने एक यूनिवर्स बनाने के लिए सोचा कि कैरेक्टर हम लोग एनिमेशन क्रिएट करते हैं, और एनिमेशन ऑलवेज रहता है जहन में कितने भी साल हो जाए, क्योंकि वो लाइव एक्शन नहीं है. आप Absolutely. अपने कैरेक्टर के साथ कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन कोविड के बाद और कुछ नई पॉलिसीज जो भी है, तो इतना एनिमेशन शोज टीवी के ऊपर चल नहीं रहे. थोड़ा एनिमेशन मार्केट थोड़ा स्ट्रगल है. कर रहा है. हाँ. करेक्ट. तो आपको भी तकलीफ होती होगी. I think Abhishek is लेकिन- there somewhere from Jio Hotstar. He can. हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ जब भी स्ट्रगल होता है ना, तो जब उससे बेटर कुछ आता है तो बहुत वो मार्केट को एकदम अलग लेवल पे लेके जाएगा. तो आप ये लिख के लीजिए कि 1-2 साल के अंदर एनिमेशन मार्केट वो जंप करेगा इंडियन मार्केट में. इंडियन मार्केट में. हम लोगों ने अभी तक अपने इंडियन कैरेक्टर उतने बनाए नहीं हैं. ऐसे मोटू पतलू ने जो अच्छा किया, छोटा भीम ने किया, ऐसे है हमारे पास एग्जाम्पल. अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा का भी जो एनिमेशन है, तो 15 मिलियन सब्सक्राइबर के ऊपर लोग सब्सक्राइब करते हैं, एंड मोर देन बिलियन में व्यू है. रोज के बिलियन में व्यूज आते हैं. जो हमारा राइम्स है, तो हमने राइम्स को भी एक थॉट के साथ बनाया है कि नो डाउट आज ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन हमारी भारतीय भाषा वो भी जरूरी है, जो हम घर में बोलते हैं. तो गुजराती में, मराठी में हमने उसमें राइम्स बनाए हैं, इंग्लिश में भी बनाए हैं. लेकिन हमारा एक ये कि आप बच्चे लोग को अपनी भाषा भी सीखो. True. क्योंकि हमारी मातृभाषा भी हमारी माँ है, हमारी भारत माता भी हमारी माँ है. True. तो हमको कभी भी इंग्लिश सीखो, फ्रेंच सीखो, रशियन सीखो, जो भी सीखना है सीखो, लेकिन अपनी मातृभाषा कभी छोड़नी नहीं चाहिए. क्योंकि बड़े बड़े स्कॉलर ने कहा है कि अपनी मातृभाषा में जिसने एजुकेशन लिया है, अपनी मातृभाषा में, तो उसकी समझ अलग होती है. तो हमने चाहे कि बच्चे लोग भी अपना मातृभाषा पे ध्यान दे, बचपन से अपना इंडियन म्यूजिक थोड़ा समझे, अपने कार्टून कैरेक्टर देखे, वो कार्टून कैरेक्टर के पीछे के अपने विजुअल वो लोग के जहन में जाएंगे, तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, वो लोग ऐसा ड्राइंग करेंगे. तो हमने बहुत सोच के राइम्स बनाया है. ऐसा नहीं कि हमारा शो पॉपुलर है तो हम एनकेश करते हैं. एनकेश होगा जब भगवान की इच्छा होगी, पैसे मिलेंगे, लेकिन पहले काम अच्छा करेंगे. True. करेक्ट. क्योंकि जब काम अच्छा करते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है. आप भी अच्छा करते हैं, इसके लिए बार बार यहाँ आने का मन होता है. Thank you, है sir. ना सिद्धार्थ? नहीं, तुम भी बहुत मेहनत करते हो.
तो जब अच्छा अगर हमारा कुछ होता है, थॉट अच्छा होता है, भले धीरे धीरे शुरुआत होती है, लेकिन True. थॉट होता है तो सब कुछ आगे चलते हैं, लोग साथ में जुड़ जाते हैं. तो आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का राइम्स विदाउट प्रमोशन ऑर्गेनिक चल रहा है और बिलियंस में व्यूज आ रहे हैं. अभी एनकेश नहीं हो रहा है, उसका फाइनेंशियल अभी देखेंगे किसके साथ कुछ Growth phase करेंगे, है, growth phase है. ग्रोथ करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग अपना मजबूत Conviction कर है. रहे हैं, बेस एकदम मजबूत कर रहे हैं, तो वो एकदम होगा. और जब हम यूनिवर्स बनाने की बात करते हैं तो एक लाइव एक्शन शो है, राइम्स हो गया, Gaming. गेमिंग. तो अभी हमने एक गेम लॉन्च किया है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. वो गेम्स के 5 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं. हमने कोई पब्लिसिटी नहीं किया है, ऑर्गेनिक लेवल पे कर रहे हैं. थोड़ा थोड़ा पब्लिसिटी करते हैं, या तो हमारे शो में करते हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पे भी दे एंजॉय दिस गेम, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. और साथ में एजुकेशन भी है कि आपको मालूम होगा, हम एक कौन सा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम लोग एक गेम खेलते थे बचपन में जो ट्रेडिंग सिखाता था. अरे एकदम Monopoly. मोनोपोली, यस, जिसको हम व्यापार बोलते थे. तो मराठी में होता था, गुजराती में भी होता था, फिर मोनोपोली हो गया, जिससे आप सीखते हो बचपन में कि इतना पैसा मिला, अभी इतना इधर रखूंगा तो इंटरेस्ट मिलेगा. तो हमने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप बनाया कि जो छोटे बच्चे लोग भी अगर गेम खेलेंगे और बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं, कि आपको क्या एक्सपेंस करना है, इंटरेस्ट कैसे लगेगा, कितना स्टॉक रहेगा, आप कैसे बेचोगे, आप एम्प्लॉय रखोगे तो क्या कॉस्ट आएगा, कॉस्टिंग कैसा होगा. तो ये सब बहुत कुछ उसमें है. रन जेठा रन, हंगरी गोली, दया के ऊपर गेम है. और अभी एकदम स्टोरी का गेम हम लोग लेके आ रहे हैं, पोपटलाल की शादी का गेम. क्योंकि लाइव एक्शन में लिमिटेशन है कि आप शादी कभी करोगे कभी नहीं करोगे, डिपेंड. लेकिन यहाँ पे वो गेम तो मैं बना सकता हूँ, तो वो गेम भी बहुत पॉपुलर होगा. वो अभी टाइम है लॉन्च करने का, लेकिन हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. और उसके साथ हमने सोचा कि चलो हम लाइसेंस एंड मर्चेंडाइजिंग भी करते हैं. Yes, very important. तो टी शर्ट्स है, जैसे बापूजी बोलते हैं जेठालाल को बाबू चक, और ये जितने भी फाफड़ा जलेबी, ये जितने भी हमारी टैगलाइंस है, वो सबको करके अच्छे से डिजाइन करके टी शर्ट्स है, मग्स है, स्टेशनरीज है, जैकेट्स है, स्कूल बैग्स है, ये बहुत कुछ चीज़ें हम लोग लॉन्च कर रहे हैं. और क्वालिटी प्रोडक्ट, ये नहीं है कि चलो हमने एनकेश कर दिया, प्रोडक्ट मार्केट में बेच दिया और पैसा आ गया. सॉरी, वैसा नहीं. अगर कोई प्रोडक्ट होगा तो घर में टिका हुआ रहना चाहिए, कि यूज होना चाहिए. तो वो भी एक, हर एक चीज के पीछे एक थॉट है. और सबसे बड़ा चीज जो आप लोगों ने कहीं भी देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्ले स्कूल. जब हमने देखा कि हमारा शो देख के बच्चे लोग बहुत सीखते हैं, हम एक सोशल वैल्यूज क्या करना चाहिए. देखो, हम लोग जो होता है वैसा हम लोग बोलते हैं, एक सोसाइटी में कैसा होना चाहिए, घर में आपको मम्मी पापा के साथ कैसे बिहेव करना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में हम लोग सिखाते हैं. तो ये ऐप है जो 6 साल के बच्चे तक वो एंजॉय कर सकते हैं. वो उसमें गेम्स भी होगा, एजुकेशन भी होगा, लेकिन एजुकेशन एंटरटेनमेंट के तरह से होगा, ये पूरा ऑनलाइन है. ऑनलाइन. उसका हम लोग चार्ज भी करने वाले हैं. उसका बाकायदा रिपोर्ट कार्ड बनेगा, हम उनके पेरेंट्स से भी जुड़ेंगे. और बच्चों को कैसे क्रिएटिव बनाया जाए थ्रू एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी, हम लोग बच्चों को कैसे एजुकेट करें. तो एक थॉट है. बहुत साइकोलॉजिस्ट, रिसर्च करने वाले, कुछ टीचर्स जो चाइल्ड साइकोलॉजी समझते हैं, उनको हमने पूरा टीम बनाया है और ऐसे करके गेम बनाए हैं. तो 6 साल का बच्चा जब होएगा तब तक ये लोग सीखेंगे, फिर राइम्स देखेंगे, राइम देखने के बाद समझदार हो जाएंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखेंगे.
टी शर्ट भी लेंगे सर. फिर पैसा कमाना चालू होगा तो खरीदेंगे भी. ट्रू ट्रू ट्रू. तो अभी भी आज भी देखो ये शो 3 से 4 जनरेशन को मालूम है. आज भी 10 साल का बच्चा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है, उसका ग्रैंडफादर भी देखता है. कुछ बहुत लोगों को मैं सुनता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे दादा ये शो देखते थे, मेरे पिताजी ये शो देखते थे, अभी नहीं रहे. और वो शो तो हमको भी आंख में आंसू आ जाता है कि उनका मेमोरी साथ में जुड़ा हुआ है. तो बस ये किड्स का कंटेंट बना के शो का यूनिवर्स ऐसा क्रिएट करके हम एंटरटेनमेंट को एक अलग दुनिया पे लेके जाना चाहते हैं. ये नहीं कि चलो शो बनाए, शो लोगों को याद रहना चाहिए. नहीं तो आज तो ऐसा है कि एक रील चला गया हम भूल गए, शॉर्ट मेमोरी है. तो ये सब उसका हमारा कोशिश कर रहे हैं. और मैं खुद भी अपना अभी एक मीडिया बजट स्पेंड करके ये डेवलपमेंट में भी बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है हमारा. अभी आगे चल के हम लोग उसमें कुछ इक्विटी पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं कि जो साथ में जुड़े, जो हमारा थॉट प्रोसेस के साथ है. कुछ हम लोग गलत करना नहीं चाहते. जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने लोगों को, हमको जो प्यार दिया है उसको हम बरकरार रखेंगे. आज मुझे और मेरी टीम को एक बहुत बड़ा गर्व है कि हम लोग हंसा के पैसा कमा रहे हैं. तो बस तो वैसे ही ये सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं. बट अजित सर, इट्स फिनोमिनल. आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, एक आईपी बनाई है, एक शो बनाई है विच इज़ सो सक्सेसफुल. ऑफ कोर्स इट इज़ ल्यूक्रेटिव, पर आप उस पर रुके नहीं हो. आप एनिमेशन, मर्चेंडाइजिंग, गेमिंग, अभी एडुटेनमेंट, आप खुद कितना इवॉल्व होते हो, खुद कितना लर्न करते हो, बिकॉज धंधा आप चलाते हो. एक धंधा इज़ वेरी सक्सेसफुल, यू आर लुकिंग एट न्यू अपॉर्चुनिटीज, एवेन्यूज, पर उसको सक्सेसफुल करने के लिए यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल द बिजनेसेस यू आर गेटिंग इनटू. तो आप खुद एज अ लीडर कैसे खुद को ग्रो करते हो सर? मैं भी सीखता हूँ, क्योंकि आज हमारी ऑफिस में जो एनिमेशन गेमिंग टीम है वो सब यंग बच्चे हैं. यानी जो नॉर्मल एज ग्रुप है 23 इयर्स का एज ग्रुप है. और मेरे साथ जो मेरे ये पूरा जो ये वर्टिकल है किड्स का, उसको डेवलप करने के लिए हरजीत छाबरा, आप लोग उस ऑफ कोर्स वो सब टीम में मार्केटिंग चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे, सोनी पिक्चर्स के साथ थे. तो उन्होंने बहुत काम किया है, तो वो भी मेरे साथ है. और मैं जो हमारी टीम है उनसे भी बहुत सीखता हूँ. मैं भी एज अ स्टूडेंट काम करता हूँ. इवन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी नहीं तो रोज रोज नया कुछ होगा नहीं. अगर रोज आपको कुछ नया करना है तो लोगों से भी सीखना पड़ेगा. तो मैं एवरीडे वही समझता हूँ मुझे नया क्या करना है और नया कहाँ से मिलेगा. तो और टीम बहुत अच्छी है, सब लोग को एक लिबर्टी है, फ्रीडम है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो. हम लोग कोई भी आके एक्सप्रेस कर सकता है. मेरी ऑफिस में, मेरे रूम में आके कोई भी सर ये मैंने बनाया, देखो कैसा लगा, ये थॉट अच्छा है, हम लोग ये करते हैं, तो लॉजिक देते हैं. तो बहुत क्रिएटिव मीटिंग होती है, फन करते हैं, मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, शांति से काम करते हैं. So, I know you have a writer's corner, creative corner भी आपके ऑफिस में, where you kind of sit with your writers. Now that you're focusing, sir, kids content में, kids तब, kids अब, अभी बहुत बदल गए हैं. तो आपको क्या लगता है जो coming time है, what are the best ways to get attraction of the overall kids जो हमारे audience है? आपको क्या लगता है आपके business में क्या करने से उनके तरफ ज़्यादा एक lucrative offer होगा? ये देखिए, आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आज बहुत का रैपिडली भी चीज़ें चेंज हो रही है आजकल. आज का जो कीड है ना, यानी आपको कीड बोलोगे या क्या बोलोगे मालूम नहीं है, क्यों 8, 9, 10 साल में वो मैच्योर्ड हो जाता है. ट्रू. मम्मी पापा मोबाइल दे देते हैं या उसको खुद को लेना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है. जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो साथ में कुछ चीज़ गलत भी होती है. तो वो एक्सपोजर इतना बढ़ गया है, उससे बच्चे लोग कंफ्यूज भी हो गए, थोड़ा लो फील करते हैं
कि हमको कितना दुनिया में क्या क्या अचीव करना है। लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं। कोई छोटा सा बच्चा यूट्यूबर हो जाता है तो उसको लगता है मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो पहले हम लोग 17-18 साल तक बोलते थे बच्चा है, अभी 12 साल का बच्चे को सब कुछ मालूम है, पूरा सब कुछ मालूम है, क्या कैसे होता है क्या नहीं। तो हमारा ये जिम्मेदारी है कि बच्चों का जो इनोसेंस है वो हमको जिंदा रखना है थ्रू एंटरटेनमेंट, ऐसी सब स्टोरीज कि जो उनको कुछ सरप्राइज दे। ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मैं तारक मेहता में भी देखता हूँ, जो पहले जो बच्चे लोग आते थे तो एक अलग इनोसेंस थी। अभी का जो बच्चे लोग हैं उनको एक बहुत मैच्योर्ड हो गए, उनको क्राइम, सस्पेंस, ओटीटी भी देख लेते हैं, सब कुछ उनको सिंपल हो गया है। तो एज अ पेरेंट, एज अ एंटरटेनर, या जो भी हम लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम लोग का जिम्मेदारी होना चाहिए कि बच्चों का इनोसेंस रखे और ग्रेजुअली उसका प्रोग्रेस हो। क्योंकि जो आप सोशल मीडिया पे जो क्लिप आप देखते हैं वो मैं भी देखता हूँ, बच्चे भी देखते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, कुछ भी वर्ड सर्च किया तो वो जा सकते हैं। वो एक्चुअली बहुत बड़ा एक इश्यू है जिसको हमको एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि ये बच्चे फिर अभी देखिए, अभी ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है कॉमेडी को लेके, वो बच्चे लोग को भी मालूम है कि अरे इसने क्या बोल दिया। तो छोटे बच्चों के दिमाग में भी कुछ असर होती है कि इसने, जिसके मुंह से जैसे निकल गया हो जो है वो अलग बात है, लेकिन बच्चे लोग के माइंड पे क्या असर होती है, सही गलत का फर्क नहीं समझ हाँ, पाते। जो न्यूज़ चैनल पे जिस तरह से न्यूज़ आते हैं कभी कभी, तो बच्चे लोग भी वो देखते हैं। उसको रोकना भी मुश्किल है, लेकिन उस पर सोचना तो जरूरी है। ये आपने बहुत करेक्ट बोला, मेरे को भी एक अच्छा थॉट दिया, तारक मेहता के लिए एक आइडिया भी मिल गया कि आज के बच्चों के लिए हमको ये करना पड़ेगा। सर आई थिंक इट्स सेइंग टाइम्स अप, पर एक सवाल और पूछूंगा मैं। थिंग्स आर चेंजिंग, एआई, एनिमेशन, गेमिंग, काफ़ी कुछ आ रही है, बट आई थिंक एट द कोर ऑफ कंटेंट इज ऑलवेज इमोशन। कोई भी एज के हो, कोई भी बच्चे हो, इमोशन से ही आर्ट होता है। तो जो भी आप बिजनेस डिसीजंस लेते हो, जो भी शो में करते हो, व्हाट डू यू थिंक जो फ्यूचर टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी है कभी इमोशन को रिप्लेस कर पाएगी? व्हाट्स योर थॉट एज अ क्रिएटर? देखो, एआई में कभी एआई स्टोरीज बना सकता है, जो भी बना सकता है, लेकिन पिक्चरें भी हो रही है आजकल एआई में अपेरेंटली। हाँ, सब कुछ हो सकता है। अभी हमारी टीम भी कभी कभी कुछ बना लेती है, कुछ भी है, लेकिन एआई के थ्रू सब कुछ तो नहीं हो सकता है। एक रिलेशनशिप है, आज हम लोग ये समिट हम लोग ऑनलाइन भी रख सकते हैं, सब लोग, उल्टे ज्यादा लोग जुड़ेंगे। अभी कौन जाएगा धूप में वहां तक, करेक्ट, ट्रैफिक होगा, लेकिन जो पर्सनल मिलने में जो वार्मथ है, जो हम लोग बातें करते हैं लोगों के साथ, मिलते हैं, जो हमारा एक ह्यूमन अप्रोच है, जो एक रिलेशनशिप है, जो आईज टू आई कांटेक्ट है, जो हम एक दूसरे के करीब मिलते हैं तो एक दूसरे की जो सांस हम लोग जो महसूस करते हैं, खून का रिश्ता है परिवार के साथ, वो सब एआई में कभी हो नहीं सकता है। और एआई ह्यूमन ब्रेन ने ढूंढा है, तो ह्यूमन ब्रेन ये सबसे बहुत आगे है, तो इसका तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो चैलेंजेस आएगी, लेकिन जितनी चैलेंजेस आएगी तो भगवान ने हमको ऐसा दिमाग दिया है कि उससे आगे बढ़ने का सोच भी हमको दिया है। Lovely. Lovely. So last question. Tarak Mehta or Asit sir's maybe plan, vision for the next 5 years. किधर देखते हो आप सर आपको? 5 years बहुत हो जाता है in today's time, but still I know you think a lot, you are very focused.
नेक्स्ट 5 साल में आपके क्या कुछ इमीडिएट या लॉन्ग टर्म गोल्स है सर? देखो बहुत कुछ ऐसा सोच सोच के नहीं करते हैं कि अभी ऐसा करेंगे अभी वैसा करेंगे। हम लोग ऑडियंस से बहुत कनेक्टेड है और जो ऑडियंस के आजू बाजू में जो घटनाएं बनती है जिससे ऑडियंस जो हमारा व्यूअर्स है उसके जो भी हमारा सोशल लेवल के ऊपर जो भी चेंजेस आते हैं, सोशल मीडिया से समझ के जो भी चेंजेस आते हैं, तो उसको हम समझ के धीरे धीरे चेंजेस तो करेंगे क्योंकि ह्यूमर भी बदलता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहले बहुत मजा आता था, अभी देखेंगे तो अभी भी मजा आएगा। आपका इनोसेंस और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कम हो गया है। मैं ये भी बोलूँगा कभी कभी शो में भी चेंजेस आए हैं, वो भी रीज़न हो सकता है क्योंकि जो छोटी टप्पू सेना थी वो बड़ी हो गई क्योंकि बड़ा होते हुए भी दिखाना पड़ेगा। तो जब छोटे बच्चे थे तो धमाल मस्ती होती थी, अभी वो टीनेज हो गए तो अभी उनकी धमाल मस्ती अलग लेवल पे हो जाती है। तो शो बदलता है, तो वैसे ये और भी बदलेगा, वो धीरे धीरे होगा। वो हम लोग सोच के प्रोसेस नहीं करते हैं। रोज का शो है, रोज हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, रोज नई लर्निंग मिलती है, लेकिन शो चलता रहेगा। ये शो ने बहुत प्यार दिया है तो इससे आज भी हमारा हौसला बुलंद है, वही मेहनत कराता है। 17 साल हो गए जो भी है, लेकिन रोज सुबह नए आइडिया, नई स्क्रिप्ट, नया थॉट, उसी पे दिमाग चलता है, तो चलता रहेगा। थैंक यू सो मच असित सर। आई थिंक आप भी जैसे हो ऐसे ही रहना। Cheers to many more years of Tarak and many more success. Thanks a lot, sir. This is Asit sir for you. थैंक यू, Thank you so much, sir. के लिए जोर से ताली please. थैंक यू। And ऐसा कहा जाता है that change is the only constant, but I think the only constant in Asit sir's life is consistency and brilliance. Thank you so much, sir. मैं request करूँगा for the gift hampers and the token of appreciation for थैंक Asit यू sir. ऑडियंस, थैंक यू। Thank you, sir. यहाँ पे आने के लिए अपना time निकाल के we are very happy to see you again.